I welcome all the friends to this special uh, episode, I will say, of Read with a Teacher. Here we are not reading a book basically, and we are here together to discuss a important policy document. And being a teacher, it's extremely important for us to engage with the conversation around the policy documents. I would just like to give initial background about the document that we are going to discuss. And also I would like to introduce the esteemed panelists we have to discuss the important policy documents. So friends, as you all are aware, that last year we got the new education policy, the first education policy of 21st century India. And this has imagined a very new landscape for education in India for the coming decades. And NCTE, the National Council of Teacher Education, is a regulatory body, and the NEP mandates the NCTE to draft the document for the professional development of teachers. So NCTE has come with a document called NP, National Professional Standard of Teacher, NPST, and it is available in the public domain. And all the stakeholders were asked to read the documents, comment on it, and I think people who are directly related to school education, the school teachers, they are the greatest stakeholders, and it's their right, their duties to read that document, analyze it, comment it, and give feedback to NCTE. So we have, for this, we are having this panel discussion to develop an understanding of the issues which has been raised in the draft document, and we will be trying to collect all those understanding which we will develop together and we'll write back to NCTE. And this is one of the purpose we are having this collective conversation here. With us, we have our esteemed panelist, Dr. BP Pandey, who is, I feel very strongly that at this point of time, if there is any person in India who has successfully brought to very powerful professional development program in the domain of school education, so the credit goes to him. So we have like two very interesting programs with the Delhi government. One is teacher development coordinator program, and the other is mentor teacher program. So both the program is a successful teacher professional development program, which Dr. Pandey has actually shaped through his tremendous effort. So we will be listening him. He is also traveling, so it's a little bit difficult for him to be on the camera all the time. So we will be listening him. We have with us Vandana Gautam, ma'am. She's a Fulbright scholar, and for more than 2 decades of experience in the field of education, experience at national level, at international level. She's in regular contact with teachers from across the globe. So we will be learning from her vast experiences and exposure. We have Dr. Neil. He's a science mentor teacher, a PhD in history. So a very interesting combination. So we have a lot to learn, very active in writing and reading. He's also a part of the editorial board of Delhi Shiksha magazine and Delhi Science magazine, which comes out. So welcome, Dr. Neil. Welcome, Vanna ma'am. Welcome, Dr. Pandey sir. And we have Chandan, who is the protagonist, basically, the idea which we are discussing today. This is his idea, this is his brainchild. I'm just putting it here before you all. He's my partner, colleague, who inspires me a lot to do all these kind of work. So welcome, Chandan. And we will be having Dr. Ajay Chaubey in a short while. He's also traveling, so it's a little difficult for him to join at this moment. And Dr. Ajay Chaubey is known as the innovator, a pedagogue in the schools. So we'll get the opportunity to listen him in a short while. So I welcome all the panelists to this special episode of Read with a Teacher, where we are discussing a very important policy documents which has been brought up by National Council for Teacher Education, NCTE. So in the very beginning, I would like to understand from my panelists the idea about the teacher professions, and we will be having conversation in both mixed Hindi and English. That still it is not very clear to all of us that whom we say are professional teachers, and why we say teacher as professional. We often don't use these words for like professional doctors.
or professional, legal practitioners or professional judges. Why it is brought all the time that the professional teachers. So what is the idea of professionalism in teaching? What is professional teacher? That's the basic question I want to understand. So I think any one of you, Dr. Neil, Dr. Vandana ma'am, any one of you can start making your initial comment on this question. Ji, Dr. Neil. Neil sir, please unmute yourself. Yeah. Am I audible? Yes. Please go ahead. Very good evening to all of you. जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं. This discussion is very important for all of us, and I just want to start from a very my own experience. It is associated with the Singapore visit. The moment we reached there in NIE, the professors used to say, "What do you do?" And when we said, "We are teachers," they objected. They came with the term, "You are not a teacher. Actually, you are educator." First of all, this point should be clear. What is the difference between a teacher and an educator? In India, the same thing is happening for a very long period of time. Historically, if we go deep down the lane, we find that we have got a very strong foundation which is associated with the learning. And once we used to call Vishwa Guru, the status of our country was Vishwa Guru. But start यहीं से करना है कि teacher और educator के बीच का फर्क हम सबको समझना होगा. एक किसी क्लास में जाने के बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को क्लास में डिलीवर करके वापस लौट आना, जब हम इतना ही कर रहे होते हैं तो हम एक टीचर होते हैं. लेकिन हम एक एजुकेटर तब बनते हैं जब हम अपने उस कंटेंट को डिलीवर करने के बाद रिविजिट करते हैं, असेस करते हैं, दोबारा से असेस करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हम जिस लर्निंग को लेके उस क्लास तक गए थे वो लर्निंग हो रही है. 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, उससे पहले एजुकेशन में बहुत सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे चेंजेस आते रहे, लेकिन 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से ही धीरे धीरे स्क्रिप्टेड लेसन प्लान्स की तरफ हम लोग बढ़ने लगे. हम लोग इंस्ट्रक्शंस को एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की तरफ जा रहे थे और एक ऐसी प्रोसेस हमारे सामने आ रही थी जिसमें हम सब कुछ ऐसा करते चले गए जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है कि आज जो ऑटोनॉमी ऑफ टीचर है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है. हम बहुत सारी बार एक स्ट्रॉन्ग टीचिंग कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज है वो सारी की सारी पॉलिसीज हमें इस दिशा में लेकर जाती है कि हमारी फ्रीडम ही खत्म होती जा रही है. तो क्योंकि पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गवर्न करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमारे पास ऑटोनॉमी भी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन ऐसे लोग कर रहे होते हैं जिनको टीचिंग का टी भी नहीं पता होता. तो ऐसी स्थिति में बार बार ये टर्म चलती है कि टीचर शुड बी प्रोफेशनल, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए और एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के फॉर्म में ऊपर से बहुत सारी चीजें टीचर्स के ऊपर थोप दी जाती हैं और ये टैग लगा दिया जाता है कि प्रोफेशनल टीचर बनना पड़ेगा आप सब लोगों को. थैंक यू डॉक्टर नील, आपने बहुत इंटरेस्टिंग इनिशियल रिमार्क रखा एंड आई वाज सीइंग इट दैट आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट से ही उन सब चीज़ों को लिया है कि कैसे एक टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करके ऑटोनॉमी और एजेंसी को हटा दिया जाता है. एंड दिस इज व्हाई द नीड एमर्जेस कि क्यों हमें प्रोफेशनल टीचर्स की जरूरत होती है. बिफोर आई कम टू वंदना मैम, आई वुड जस्ट लाइक टू read how the document has defined the idea of teacher professionalism. So it writes, historically, the concept of professionalism was associated with the quality of practice and the public status of the job. It was referred to the level of autonomy and regulations within the occupation to provide services to society. It requires specialized training, knowledge, qualification, and skills. However, teaching as a profession goes beyond meeting these formal characteristics criteria. It also includes emotions that are at the heart of teaching.
The combination of formal criteria and informal requirements, along with changing student learning needs, has led to the evolution of the teaching profession and the role of a teacher. तो इस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है. I would just like to repeat the couple of keywords again. It requires specialized training, knowledge, qualification and skills. और उसके बाद इसमें मतलब ऐड कर दिया गया है इसको. तो वंदना मैम, in this context, when we say that the teaching as a profession, right? तो इसको क्यों बार बार रीएस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ रही है डॉक्यूमेंट्स को भी, हम टीचर्स को भी? It means somewhere it has been missing. We want to know more from you about this. Why do we need to insist about it more again and again? So very good evening to all of you. And about this purposive discussion, if we see, so there is a need to revisit the document, evaluate it, because as you've already mentioned, and as Dr. Neil has also said, that it involves education, just like any other profession, involves a lot of dynamism. It isn't operating in isolation, but in every setup, it operates contextually. The challenges may be, we may be on the same plane about certain challenges, but we may be having different challenges contextually as well, which exist in different countries, in different setups, and may vary even regionally from one state to another within a country as well, as we have seen in different contexts. So as we are operating in a very dynamic world today, if we see the education, how it existed 5 years ago, and what we term as the Delhi's education revolution, if we see how we evolved in these 5 years, so one thing is that the only thing that is, permanent is change. So we need to be revisiting the existing things and even seeing what is being proposed, not blindfoldedly, but see how it settles in our own contextual domains and in context of the challenges which the teachers have been facing off and on, especially pertaining to the professional and career growth opportunities. So there has been a constant flux, which we have been imagining, which we've been seeing, and changing role of a teacher in context of only a passive person who's, delivering the knowledge to a person who's now mentoring and who's now a reflective practitioner and evolves in his own context as well. And also in a collaborative manner helps others evolve as well. Perhaps that is the role what we are fitting in as mentor teachers all these years altogether. Absolutely. Chandanji, I wanted to come back to you, and suddenly you are not on the screen. So like जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग रही है, और मुझे याद आ रहा है कि ये सवाल एक प्रीवियस पैनल डिस्कशन में जब दिल्ली कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहां पे भी मैंने पैनलिस्ट से पूछा था कि अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल आए कि एक दो क्लासरूम है, और एक क्लासरूम में एक टीचर है जो प्रोफेशनल है, और एक क्लासरूम में एक टीचर है जो प्रोफेशनल नहीं है, so if we could get some example क्या फर्क होगा, तो we could understand it very clearly. तो आप में से कोई भी अगर वो एग्जाम्पल हमारे साथ साझा करना चाहे. तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले से मेरा मतलब है लॉकडाउन से पहले कुछ एक स्कूल विजिट करने का मौका लगा था, जहाँ पर ये चीज बहुत ही क्लियर थी कि हम अक्सर टीचर्स को कहते हैं कि वो पोर्टफोलियो मैनेज करें अपने स्टूडेंट्स का, ताकि वो बच्चे के साथ साथ बच्चे के पेरेंट को भी टाइम एंड अगेन बता सके, दिखा सके कि देखिए बच्चे ने कैसे ग्रेजुअली खुद में इवॉल्व किया है, ना कि अन्य के मुकाबले कितनी उसमें जो है मार्क्स या अंकों की जो दौड़ होती है उसकी बात हो रही थी. तो मैंने देखा कि हालांकि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, बट द टीचर वाज मेंटेनिंग द पोर्टफोलियो इन एवरी टाइम. I request that if you are not speaking, please be on mute. Thank you. So that teacher was maintaining all the portfolios of all the students with her all the time. She was simply keeping it in a digital form. That's why I was saying that all the time. But at the same time एक दूसरी क्लासरूम में वहां पर मैंने पाया कि थोड़ा असंतोष था. मैंने वर्ड असंतोष इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कोई एक डेटा मांगा गया था, और जिसके लिए उनको 3-4 फाइलें निकाल करके देखनी थी. तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है प्रोफेशनल टीचर का होना,
तो प्रोफेशनलिज्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में या फिर आपके लाइक क्लासरूम ट्रांजेक्शन में ही झलकेगी, बल्कि वो आप उस तमाम चीजों का रिकॉर्ड भी किस तरीके से मेंटेन करते रख पाते, ताकि वो आपके लिए एक, मैं कहूँगा, काम की तरह ना हो बल्कि एक प्रोसेस की तरह हो, जिसमें आप देख सके, दिखा सके that how the child is evolving with you. So that's the basic difference between having a professional teacher and a non-professional teacher around the class. Interesting aspect चंदन जी आपने लाया। मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट भी बात कर रहा है कि हमें एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को सेट करना है, क्योंकि वी हैव, इट्स अ वेरी बिग कंट्री और बहुत अलग अलग नोशंस हैं टीचर्स का और टीचर कम्युनिटी का भी, जो नेबरहुड के टीचर्स हैं कहीं पे, तो दूर दराज के इलाके में जहाँ पर शायद इतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे हमने 5वीं या 8वीं क्लास पास लोगों को भी टीचर बनने की इजाजत दी गई है। तो शायद कोई एक नॉर्म हर जगह फिट नहीं हो पाएगा, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एनसीटी कुछ कोर वैल्यूज को एक साथ रखना चाह रहा है कि दिस इज द मिनिमम थिंग्स व्हिच नीड टू बी एंश्योर्ड, एंड उसमें वो स्किल्स और सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तो होना ही चाहिए। एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई आई ऑफन, मतलब मेरा ये बड़ा एक क्या कहेंगे कि the question which I deeply relate to, उसकी वजह है कि अक्सर आप सुनेंगे, जैसे आप हमसे हमारे साथ कॉन्टेक्स्ट भी शेयर करते हैं कि टीचर्स के लिए जो कहा जाता है कि अच्छा ये तो कोई भी बन जाता है, तो ये जो सवाल है, ये जो आपको सुना दिया जाता है कि अच्छा टीचर बन गई तो कोई भी बन जाता है, तो that immediately reduces your whole identity, you know, to something which you are not worth for. तो मुझे लगता है जो प्रोफेशनल रिगर की जो बात आती है, जिसके लिए अभी ये डॉक्यूमेंट तैयार की जा रही है, वहाँ पे इसका महत्व काफी बढ़ जाता है कि, एंड एट द सेम टाइम नाउ आई एम एक्चुअली कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि एनईपी यह कह रहा है कि वी नीड द ब्राइटेस्ट माइंड, राइट, इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, एंड ऑब्वियसली उससे इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ेगी। एंड एनसीटी के इस डॉक्यूमेंट में भी उस लाइन को कोट किया गया है कि वी नीड द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट माइंड इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। बट द क्वेश्चन जो अभी तक ड्राफ्ट में मुझे नहीं मिला, आप लोगों ने सबने पढ़ा है, एंड एक्चुअली हम अभी ड्राफ्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, वी आर हियर टू यू नो टू अंडरस्टैंड, टू ब्रेनस्टॉर्म एंड टू गिव सजेशन। क्या किया जा सकता है टू ब्रिंग द बेस्ट टू द प्रोफेशन ऑफ द टीचिंग? एनी वन ऑफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। वंदना मैम, अनम्यूट कर। Okay, so I was not I was not allowed to unmute Okay, by okay. chance. Yeah. So I think for this very purpose, the teachers do need to have an assured career progression. That is one thing which is very important, because after a point in time, one may join a job opportunity in terms of finance, but slowly and steadily we see that it does take a back seat. If you see these 200 mentor teachers who've joined this mentorship program, we do not have any financial incentives as such. Right. But it is the aspiration to have a steady career progression, build competency, to build professional competence, and to get various educational opportunities of going to the best models in India and abroad, which brings us this, or makes this opportunity very lucrative for us, even at the cost of working for long hours and being engaged in multiple opportunities. So therefore, I think career progression and a specific trajectory of career progression also, the lurk of being appreciated, of being acknowledged, and taking the good work forward is also one of the prime concerns, as we've already seen in Maslow-Herzberg model, that primary needs after a point start to like vanish, and there are other needs which take precedence, and more so in case of an educator who is looking for emotional, intellectual, and psychological growth. So I think this is one area which is very important to us, and of course having a leader like Pandey sir, who will be full of opportunities for everyone. And अगर अभी तक आप देखेंगे तो अगर हमें एक्शन रिसर्च के पेपर्स प्रेजेंट करने जाना था, तो
उसमें कोई hindrance नहीं थी, without any kind of bureaucratic delay or any kind of right. With a lot of autonomy that has come forth, we were able to express ourselves at our best. The way I see Murari today is like wonderful, and the way I see all my colleagues progressing is wonderful, and that is definitely has happened due to a presence of a dynamic leader who provides a lot of autonomy. So yes, teachers need a lot of autonomy. They need a specific career progression, and yes, they also need professional competency, which develops going abroad to different countries is an eye-opener in ways more than one. Right. It's not just an academic context, but how you see teaching learning happening in different cultural contexts. Absolutely. जो उस opportunity को आपके सामने present करती है. Right. So I think that's important. तो हम I think career progression को मतलब डिजाइन किया गया है और हम थोड़ा सा उस पे बात करेंगे उस career progression के बारे में. Just a quick comment actually. जी go ahead. इससे पहले आप बोलिए, इससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हम अगले सेगमेंट पे आगे बढ़े. सर ने बहुत ही बेबाकी से अपनी जो रियल पिक्चर है हमारे टीचिंग कम्युनिटी की वो सामने रखती है और एक एग्जाम्पल भी मेंटरशिप प्रोग्राम का रखा है. मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस रफ्तार से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है, इवॉल्व हुई है, हमारी जरूरतें बहुत डायनेमिकली बदल गई हैं, लेकिन जो हमारा टीचिंग एज अ प्रोफेशन रहा, उस टीचिंग एज अ प्रोफेशन में वो जो गैप है इवोल्यूशन की, हमारी सोसाइटी के रैपिडली चेंज होने की, उसके मुकाबले में बदलाव टीचिंग ईयर में, टीचिंग प्रोफेशन में आने चाहिए थे, वो कहीं पीछे छूटे से नजर आने लगे हैं. और अब ये गैप इतना वाइड हो चुका है कि अब पॉलिसी मेकर्स के सामने भी एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि बेस्ट टैलेंट क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे. सर ने भी अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मैं भी यहाँ पे एड ऑन करूंगा. मेरे नाना जी ने मुझसे पूछा था, मेरी जॉब बहुत जल्दी लगी थी, तो कुछ समय बाद जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि नील कहीं नौकरी लगी या मास्टरी ही कर रहे हो. तो ये सवाल अपने आप में ये बताता है कि टीचिंग करियर को कितना नॉन सीरियस लिया जाता है और ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गैप को जितनी जल्दी हम डिबेट से और एक स्ट्रॉन्गर टीचिंग कम्युनिटी बना के फुलफिल कर लें, उतने ही जल्दी हम शायद एक अच्छा नैरेटिव सेट कर पाएंगे. ओवर टू यू चंदन. Absolutely. So just what Dr. Neil was saying, am I audible? Yes. Yeah. You are audible. Oh, Chandan, I think there's some problem now. So, Dr. Neil, आपने जो I'm back. Yeah. Continue. Just to add what Dr. Neil was saying कि जो टीचिंग में लोग आते हैं वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट आते हैं, कुछ और कर रहे हैं, साथ में बीएड भी कर लो ताकि कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट टीचर तो बन जाएंगे, या मैं कहूँगा टीचर तो लग जाएंगे. टीचर बनने की जगह पे वो लोग टीचर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो चूंकि एज अ लास्ट रिजॉर्ट आए हुए, तो वो एक जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स the profession and for the kids, वो चीज आ नहीं पाती, जिसकी वजह से जॉब जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं. उनको लगता है बस किसी तरीके से आज का दिन निकल जाए, कल देखेंगे, rather than जब हम बात करते हैं एज अ प्रोफेशनल टीचर, a professional teacher takes time to plan and think about the lessons he or she is going to deliver next day or even for the next period as well. But if I'm a teacher who is simply not enjoying the job, I will simply go in the class and ask, तो हम कल कहाँ पढ़ा रहे थे, या तो हम कल क्या पढ़ रहे थे, rather than okay yesterday we discussed this thing, let's begin with that. तो कल क्या पढ़ा था वाला जो attitude है, so that makes the difference. So thank you Chandan and Dr. Neil for adding to this. I will just share one thing. अभी मैं पिछले साल इस विषय पे काफी लिख रहा था, और दुनिया भर में मैं देखता हूँ, लाइक नीदरलैंड में इसको लेकर काफी आंदोलन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काफी हो रहा है, और दुनिया भर में ये बहुत ही लेस लिक्रेटिव जॉब, इवन अमेरिका मतलब एक्स्ट्रा जॉब्स करने पड़ते हैं टीचर्स को. तो we have to agree also on this point that this has to be made a very lucrative job also if we are looking for the best and extraordinary talents to come to the profession of teaching. And I mean I agree that we cannot compare it with other professions, but अगर हम देखें कि वो जो best
माइंड है वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, इफ वी एनालाइज दोज टू क्वेश्चंस, तो विल फाइंड द आंसर कि वही उनको बहुत जल्दी जल्दी कैरियर प्रोग्रेशन मिलता है, उन्हें काफी सारा पैसा कमाने का मौका मिलता है, जो लोग आईआईटी में जा रहे हैं या मेडिकल्स में जा रहे हैं. So if we want to divert them and bring them to the profession of teaching, we will have to adopt some of the glamours which are available in those fields of IT and medicine perhaps. So yeah, this is what I think, and I think इस बारे में कुछ 5-7 दिन पहले हमारे जो साथी हैं विवेक, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और उस पर भी काफी चर्चा हुई थी. मूविंग अहेड, कैरियर प्रोग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर के एक पूरा चार्ट बनाया गया है इस डॉक्यूमेंट में, जिसमें 4 लेवल के टीचर्स की कल्पना की गई है. एक जो बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल जो हम सबके लिए समझना जरूरी है कि जैसे अभी है कि प्राइमरी लेवल पे पीआरटी, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी, इस वाले जो स्टेप्स हैं उसको उन्होंने हटाया है, और किसी भी लेवल पे जो हमारा 5+3+3+2 का जो फॉर्मूला एनईपी देता है, उसमें किसी भी लेवल पे 4 प्रोग्रेशन लेवल के टीचर्स हो सकते हैं, जिसको ये लोग कह रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में अभी नाम दिया गया है कि बिगिनर, देन प्रोफिशिएंट, एंड देन एक्सपर्ट, एंड देन लीड टीचर. तो इस तरीके से तो कोई हो सकता है कि मतलब फर्स्ट जो मतलब 0+5 वाला कैटेगरी है, उसी में इन 4 लेवल्स को छू सकता है. कोई दूसरे जो +3 वाला कैटेगरी है, उसी में इन 4 लेवल को, कोई उसके अगले 3 और अगले 2 वाले में भी छू सकता है. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी प्राइमरी टीचर को सेकेंडरी में आना है, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज द कैरियर ग्रोथ. तो उस आइडिया को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है अपने आप में, मुझे जहां तक लग रहा है. बट माई क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम द पैनल हियर, that imagine the tag of the beginner. हम लोग जब भी आए तो ऐसा कोई टैग नहीं था कि हम अभी बिगिनर, एंड पर्टिकुलरली एट ए टाइम हम 2000 मतलब 30 की बात कीजिए, 35 की बात कीजिए, क्योंकि पॉलिसी भी वैसे ही देख रहा है कि ये सारे एनफोर्समेंट जो है वो असली रूप में 2030 के बाद ही आएंगे. दैट विल बी ए टाइम जब सरकारी स्कूल हो सकते हैं, लेकिन सरकारी टीचर होने की संभावनाएं बहुत कम है, जहां तक मुझे लगता है. दिस इज व्हाट द पीपीपी मॉडल इज, पब्लिक प्राइवेट या पब्लिक फिलैंथ्रोपिक मॉडल, जो भी उसको आप कहें. तो मार्केट डिटरमाइंड एक एटमॉस्फेयर में जहां पर बिगिनर का टैग लेकर के जो लोग प्रोफेशन ऑफ टीचिंग में आएंगे, वो कितना नेगोशिएट कर पाएंगे अपने कंडीशंस ऑफ वर्क को लेकर के या अपने सैलरी को लेकर के. I am really afraid of this categorization, particularly this term, and particularly for the beginners. So I would like to know more about it from my panelists about it. Ji, Vandana ma'am, Dr. Neil, Chandan. Vandana ma'am, would you like to comment on it? Yes. Can you all hear me? Am I audible? Yes, Vandana. तो पहली बात तो ये जो प्रोग्रेशन दिखाई गई है, प्रोफेशन, फिर एक्सपर्ट और उसके बाद लीड टीचर, तो एक बड़ा ही अजीब सा इसका, अगर आप इसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, स्टैंडर्ड्स एज इन कि जो सेटल किए गए हैं हर टीचर को इस लेवल को मैच करने के लिए. अभी तो बिगिनर के ठप्पे वाली बात तो बाद में करते हैं, क्योंकि बिगिनर का ठप्पा मायने क्या रखता है या उसके मीनिंग क्या है, पहले हम ये तो डिसर्न कर लें. और एनईपी जो टेबल बना करके उसने जो फॉर्मुलेशन किया है कि बिगिनर लेवल पर उसको ये आना चाहिए और फिर स्टैंडर्ड लेवल पर इस तरीके की उसकी डिस्पोजिशन होगी, वो अपने आप में ही बहुत सेग्रीगेटेड है और कई जगहों पर मुझे लगता है बहुत सिंपलिस्टिक एन अजम्पशन अबाउट अ टीचर, राइट. तो दैट इज समथिंग विच इज ऑब्जेक्शनेबल एज फार एज आई कैन सी ऑल्सो. ये तो बात है ही कि जब भी आपको स्टिग्मा या टैग, चाहे वो बिगिनर लेवल पर कि एक लेवल पर वो है तो उस लेवल पर इस तरीके का, लेकिन द पॉइंट इज कि हर एक का प्रोग्रेशन लेवल एक सा नहीं होता. आप जिसे बिगिनर लेवल पर टैग कर रहे हैं उसकी कॉम्पिटेंसी कहीं हाई हो सकती है उससे. जैसे कि असेसमेंट फॉर और फॉर एज लर्निंग का जो पैमाना है, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स उसमें दिए गए हैं, तो स्टैंडर्ड इज अबाउट व्हाट अ पर्सन नोज, what is he able to do and what is his disposition, किस तरह की स्किल्स वो डिस्प्ले करता है. तो देखिए कि जब असेसमेंट की बात वहां पर हो रही है तो वहां कहा जा रहा है कि बिगिनर लेवल पर द टीचर इज एबल टू, जो उसकी कॉम्पिटेंसी है वो इस तरह से डिफाइन की गई है स्टैंडर्ड के रूप में, दैट द टीचर इज एबल टू डिजाइन सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू असेसमेंट.
वाइल अगर हम उसको प्रोफिशिएंसी लेवल पर देखते हैं तो प्रोफिशिएंसी लेवल पर उससे एक्सपेक्टेशन ये है दैट ही इज एबल टू डिजाइन सर्टेन एक्टिविटीज फॉर असेसमेंट. Third, he is able to, expert level पर he is able to collaborate with teachers to prepare certain tools. And lead teacher जिसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा put आपको अपना ही दिखेगा as a mentor teacher. He is able to create or lead and evaluate the tools. लेकिन evaluate the tools, अब इसमें दो चीजें हैं कि क्या जो व्यक्ति beginner level पर questions बनाने में सक्षम है, क्या वो activities बनाने में सक्षम नहीं होगा, या हम क्वेश्चंस और एक्टिविटीज को क्लासरूम ट्रांजैक्शन में इस कदर सेग्रीगेट कर सकते हैं कि वन इज एबल टू मेक द टूल्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज एंड एट अ बिगिनर लेवल इज एबल टू प्रिपेयर क्वेश्चंस. अगर वो ट्रांजैक्ट ही नहीं कर रहा है क्लासरूम में तो फिर एक्टिविटीज के माध्यम से ही तो ट्रांजैक्ट करेगा ना. तो क्या एक्टिविटीज बनाना और क्वेश्चंस को बनाना दो सेपरेट डोमेन्स हैं? आरंट दे अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द क्लासरूम इटसेल्फ? सो कई जगह पर ये बहुत सिंपलिस्टिक असम्पशन है. और इवैल्यूएशन लेवल पर जो मैंने उसमें पढ़ा उसमें एक जगह पर वो ये बोलता है कि is able to at the lead level is able to evaluate assessment tools and exams for their effectiveness and their compliance with the curriculum and examination board requirement. So shouldn't at the lead level, instead of matching the parameters of board examination या examination evaluation के parameters जो existing system है उस पे meet कर पाने के बजाय क्या एक lead teacher को ये नहीं देखना चाहिए कि वो teaching learning process में for और as learning को कितना support कर रहा है जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है. तो existing tools किस तरीके से उस डोमेन में जाकर के असेसमेंट को डिफाइन करते हैं, ना कि निश्चित और निर्धारित पैरामीटर्स पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पर वो टूल कितने सटीक बैठते हैं इसका इवैल्यूएशन लीड टीचर कर पाता है. तो क्या तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने इस रूब्रिक्स पे सवाल उठाया. इनफैक्ट अगला सवाल मैं वही पूछने भी वाला था और मुझे भी वहां से काफी इंटरेस्टिंग उदाहरण मिले एग्जाम्पल के लिए. तो अलग अलग कॉम्पिटेंसीज को अलग अलग स्टेज के साथ जोड़ करके देखा गया है. तो जो बिगिनर है उनके लिए कहा गया है कि वो आईसीटी के बारे में जानेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोफिशिएंट बन जाएंगे तो वो इस्तेमाल भी करेंगे. तो नाउ इमेजिन अ टीचर विद द लेवल ऑफ बिगिनर फॉर 3 years इन स्कूल. आईसीटी के बारे में जानते रहना ही उनके लिए काफी है. They are not supposed to use it, but the moment they become the proficient one, तब फिर यूज करेंगे. लेकिन फिर साथी को नहीं बताएंगे. साथी को बताने के लिए उन्हें एक्सपर्ट टीचर बनाना पड़ेगा, लेवल तक जाना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो और इनफैक्ट अगर आप इस बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज ये भी है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ सभी की. अगर आप इस टेक्सोनॉमी को देखें तो वही अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बिगिनर लेवल पर जो आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में जो डोमेन टर्म्स यूज करेंगे वो आपको दिखाई देंगी. इनकॉर्पोरेट, डिस्कस, डेमोन्स्ट्रेट, अंडरस्टैंड एट द बिगिनर लेवल. प्रोफिशिएंट टीचर के लेवल पर उसने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो है क्रिएट, सेट, स्टिमुलेट, ऑर्गेनाइज, एम्प्लॉय, एस्टैब्लिश. और जब वो उससे आगे के स्टेज पर जाते हैं यानी एक्सपर्ट लेवल पर तो वहां पर बोलता है रिफ्लेक्शन, सेटिंग हायर एक्सपेक्टेशंस, ऑप्टिमाइजेशन, creating resources, sharing on experiences, as if at the beginner level and at so-called expertise level he has nothing to share, he has nothing to reflect. So can a practitioner only be practicing but reflection comes later on? Then how and why are we talking about assessment for and as learning? क्योंकि for और as learning मात्र स्टूडेंट्स का नहीं है, टीचर का अपने लेवल पर भी है. और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को सेटल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे उसका मूल्यांकन कर सकें, लेकिन टीचर्स भी उन पैरामीटर्स पर अपने आप को किस कदर इवैल्यूएट कर पाते हैं और क्या वो उनका मोरल डाउन करता है कि उनको मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए. और इनफैक्ट ये जो आइडिया ऑफ लोअर एक्सपेक्टेशन है ये भी तो बहुत खतरनाक है ना कि आप एक बिगिनर लेवल के टीचर से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो काफी डिमोरलाइज करना होगा उसको. डिमोटिवेटिंग भी है, डिमोरलाइजिंग भी है. वन कुड फाइंड वनसेल्फ इवन मोर कॉम्पिटेंट एट द बिगिनर लेवल इटसेल्फ. और कुछ लोग शायद इसको कुछ सालों से जोड़ के देखना चाहेंगे बजाय कॉम्पिटेंसी के. तो जब उसको सालों से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो और भी ज्यादा निष्क्रिय होता है. आई थिंक डॉक्टर नील इस पे कुछ ऐड करना चाहे. मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि जब ये विजन डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया और इसके स्टार्टिंग के पेजेस को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत नई और बहुत अनोखी चीज होने जा रही है.
ये आइडिया सुन के बहुत अच्छा लगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 ये कहती है कि क्वालिटी एजुकेशन सभी लर्नर्स को मिलनी चाहिए। अनदर ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, उनको पढ़ाने वाले टीचर हाईली पैशनेट होंगे, हाईली मोटिवेटेड होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे, प्रोफेशनली ट्रेन्ड होंगे और वेल इक्विप्ड टीचर्स भी होंगे जो बच्चों के साथ वहां पे डील कर रहे होंगे। इस आइडिया को ग्राउंड पे लाने के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स जो डिजाइन इन्होंने किया, इसके जब प्लान पे हम आ रहे हैं, रोल डाउन कर रहे हैं, तो ये वो एजेंसी है, ये वो आइडिया है जो कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कंप्लीटली कवर भी कर रहा है। मतलब ये ही डिसाइड कर रहा है कि प्री सर्विस टीचर्स जो हैं वो किस तरीके से उनको ट्रेंड किया जाए कि हमें वो पैशनेट और मोटिवेटेड टीचर्स हमें मिल जाएं। तो ये यहाँ तक आने के बाद जब इनके फर्दर एजेंडा पे हम जा रहे हैं, तो वंदना मैम ने बहुत शानदार तरीके से उसके रूब्रिक्स और उसके साथ एसोसिएटेड टीचिंग टर्मिनोलॉजीज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और एक खतरनाक चीज यहाँ पर ये भी है मुरारी सर की टीचर करियर मैनेजमेंट की भी वो बात कर रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा टीचिंग करियर, जो आपका उसका टेन्योर, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स, आपका सैलरी इंक्रीज, यहाँ तक कि अगर हम प्रमोशंस तक की हम बात करें, तो वो सब चीजें इस 3-4 चीजों में बिगिनर, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट और लीड टीचर्स के जाल में ऐसे उलझ जाएगी कि वो हाई टैलेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पता नहीं वो ये आगे होने क्या वाला है, आगे का रास्ता कहाँ से जाएगा, उसकी अभी क्लैरिटी इस डॉक्यूमेंट में नहीं आ पा रही है। ट्रू। आई थिंक चंदन जी इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी चंदन। 2 चीजें जो है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर किसी भी बस स्टॉप पर आप थोड़ी देर के लिए रुकें या अगर आप पटरी के किनारे किनारे चलें, तो आप देखेंगे 10वीं 12वीं फेल, निराश ना हो, मायूस ना हो, आए बीएड करें, जेबीटी करें। ऐसे इश्तहार जरूर आप लोगों ने देखे होंगे। और आप लोगों की हंसी बता रही कि आपको पता है कि वैसी जगहों से बीएड और जेबीटी किस तरीके से करवाया जाता है। जब हम अब वैसी जगहों से पास आउट, पढ़े टीचर मैं नहीं कहूंगा, पास आउट लोगों को जॉब पर रिक्रूट करते हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज जिस पर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहां एक पीजीटी एक प्राइमरी टीचर को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स होता है देखने वाला। और अभी तो मैं कहूंगा फॉर्चुनेटली वी हैव आवर फ्रेंड्स एंड दे ट्रीट अस लाइक ह्यूमन। वो अपने से हे दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेसर के पास जाते, एसोसिएट प्रोफेसर के पास जाते, एंड द मोमेंट यू अटर लाइक यू आर अ प्राइमरी टीचर, दे विल ट्रीट यू लाइक सम माइक्रो लेवल ओनली। वो आपको ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि आपने भी जो है वो तमाम चीजें हैं जो। चंदन जी वॉइस डिस्टरबेंसेस है आपके साइड से। अपने आप में मैं कहूंगा ध्यान हाँ नहीं आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया। इनफैक्ट मैं भी यही शेयर करने वाला था कि इन 2030, क्योंकि हम सभी लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक ओनली वी कैन इमेजिन ए स्कूल स्टाफ रूम, टीचर्स इन अ ग्रुप, बिगनर, लीड एंड एक्सपर्ट एंड प्रोफिशिएंट। अब वो एक दूसरे को बुलाएंगे, अच्छा ये वाला काम है बिगनर को दे दो, ये वाला काम है। आई मीन हाउ इट वुड लुक लाइक, इट वुड बी रियली टेरिबल। आई मीन I think those who are really from the school, I think they won't suggest this kind of nomenclature. Nomenclature अगर जरूरत भी है तो कुछ और, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग तरीके का शायद होना चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँगा जो वंदना मैम ने जिस टर्मिनोलॉजी की बात की, अगर हम देखें तो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर जा रहा है। कैटेगरी में बांट दिया गया है कि इस लेवल का व्यक्ति जो है या इस लेवल का टीचर जो वो सिर्फ यही कर सकता है, वो शेयर नहीं कर सकता, कोलैबोरेट नहीं कर सकता। दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशन, जिस पर हमें स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहिए कि दिस इज समथिंग अनएथिकल एक्चुअली।
एब्सोल्युटली एक जी जी लास्ट डॉक्टर। लास्ट लास्ट सबमिशन मेरा यहाँ पर है कि अगर हम दिल्ली एजुकेशन रिवॉल्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग हायरार्की को ब्रेक करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये जो एक टीचर होता है, जो ये डिमार्केशन है, हम खुद ही देखते हैं कि हमारे यहाँ प्राइमरी टीचर्स का स्टाफ रूम अलग होता है, टीजीटीज का अलग होता है, पीआरटीज का अलग होता है। तो पहली चीज जो आइडिया है हायरार्की को ब्रेक करने का, वो इस आइडिया के साथ तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसके पॉजिटिव तरीके से देखें तो शायद मुझे एक चीज ये समझ आती है कि इसी डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हुआ है कि 9.7 मिलियन टीचर्स यूडाइस का परफॉर्मा जब हम भरते हैं, और अभी भी इंडिया में 1 मिलियन टीचर्स की कमी है। तो इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि ये अभी एक विजन डॉक्यूमेंट है, इस पे हम सबके सजेशंस इन्होंने मांगे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड पे किस तरीके से लेकर आना चाहते हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये सिर्फ टीचर्स के एक पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को वाइडन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का किया गया है, या वाकई वो इस तरह का टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट करके टीचिंग कम्युनिटी के बीच में एक गैप पैदा करना चाहते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो डॉक्टर नील कि वो ऐसा कुछ चाहते हैं। कई बार वही होता है ना कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे पास इनफ रिसर्चेज ग्रास रूट लेवल से, स्कूल में किसी ने 5-7 साल बिता के कोई रिसर्च नहीं किया है जो इन्फॉर्म करे इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को, उसकी बहुत कमी है। तो आई थिंक आई विल से इट्स मिस इन्फॉर्म्ड बेसिकली, राइट। और जो लोग फ्रेम करने में लगे रहते हैं उनको बहुत ज्यादा इन स्कूल के अंदर के कल्चर का मतलब पता नहीं रहता है। ऊपर से जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कभी पढ़ा होता है उसी की जानकारी रहती है। सो इंटरेस्टिंग चीजें हमने बताई। एक दो चीज मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि डायग्नोज बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें किया गया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे डॉक्यूमेंट में ही बताया गया है कि सारी चीजें ऊपर से ही फ्रेम होती है और इसीलिए टीचर्स के पास ऑटोनॉमी और एजेंसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि दे आर अवेयर ऑफ इट कि वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। एंड उसमें कह भी रहे हैं कि हम बॉटम अप अप्रोच चाहते हैं कि टीचर्स की तरफ से आए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली फिटिंग इनटू व्हाट एनसीटी वांट्स एंड आवर रोल इज। तो सपोज अगर इस रुब्रिक्स में या इस प्रोग्रेशंस में कहीं पे प्रॉब्लम है, वी हैव टू थिंक फॉर द अल्टरनेटिव्स एंड आई थिंक वी हैव टू लाइक रीच आउट टू देम, वी हैव टू राइट टू देम। एंड एज आई थिंक अभी हमें किसी टीचर ने लिखा था कि जो अंडर सेक्रेटरी हैं वो खुद रीच आउट कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं टीचर्स को कि बताओ जरा क्या करना है। तो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई थिंक इज फॉर ऑल ऑफ अस that to come with the alternate ideas कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है। This is how we think, right? Raising of opinions and those opinions being heard. Yeah. So that's like very, very important. Yeah. We hope so. Talk to the right people and the right policy decisions be made. NP में अगर आप ये भी देखेंगे, जैसा आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम की तरफ और एक होलिस्टिक व्यू को दिखाने की कोशिश भी की गई है, पॉइंट करने की। तो उसने 3 डोमेन्स को जिस तरह से डिफाइन किया है कि कॉन्टेक्स्ट फैक्टर्स को, प्रोसेस फैक्टर्स को और गवर्नेंस फैक्टर्स को, तीनों को एक्नॉलेज किया है, जो कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, और उनको बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन भी किया है। राइट। इम्पैक्ट ओवरऑल टीचिंग लर्निंग पे क्या होता है। अच्छा, यहाँ अब मैं एक दो सवालों के ऊपर और आना चाहूंगा। एक चीज को लेकर के एनईपी और एनसीटी दोनों में एकदम एक मत है कि अभी जो काइंड ऑफ इंक्रीमेंट्स आपको मिलता रहता है एनुअल या डीए के रूप में और व्हाटएवर फॉर्म, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और इनका एक अलग असेसमेंट मैकेनिज्म होगा और सैलरी इंक्रीज जो है उसी असेसमेंट पे बेस है। जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो द क्वेश्चन इज कि आर वी रेडी फॉर सच मैकेनिज्म? डू वी हैव सच प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अराउंड अस, जिसके लिए एनईपी और एनसीटी दोनों ही वर्ड यूज कर रहे हैं 360 डिग्री एनालिसिस। तो इसको हम कैसे देखते हैं? क्या इसको वाकई हमारे कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया जा सकता है, जहाँ पे आप कई बार एक फाइल को भी इधर से एक टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंचाने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? Can I? Yes. तो अगर हम देखें जो हमारा ACR और APAR है, वो कहीं ना कहीं इस 360 डिग्री मैकेनिज्म की बात करता है, बट
that depends on the relationship or the rapport between the person who is going to sign on those documents, that how that person is going to really grade my work. That's one thing. And another thing is, we have very good teachers who are really good at teaching, who are wonderful when it comes to that classroom transaction, but they are poor. I would not say use bad, I would say use poor when it comes to present their work. So how this exactly going to bridge those gaps, who a person who is a good teacher but cannot write up, present their work in a writing format. So right. That is true, and also keeping in mind कि इतना बड़ा country है हमारा, बाकी कई राज्यों में ट्रांसफर्स को लेकर के कितनी ज्यादा जद्दोजहद रहती है. तो आपने जो अब जिक्र किया, द मोमेंट इट कम्स टू द पर्सन, इट मींस द सिस्टम इज फेल. अगर वो पर्सन पे डिपेंड होने लगेगा, तो इट अपीयर्स टू बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द आइडिया अपीयर्स टू बी गुड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट अपीयर्स टू बी अनरियलिस्टिक, आई थिंक, जो मुझे लगता है. एंड I mean, the similar thing is that I want to know from the panel that ये जो career progression की इन्होंने बात की हुई है, उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आप ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए जो NCT के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, और आप 3 साल के बाद बिगिनर से प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, फिर टेस्ट ले लीजिए, प्रोफिशिएंट से आप एक्सपर्ट, और फिर एक्सपर्ट से लीड बन जाएंगे. 12 साल के अंदर आप वो टेस्ट पास करते चलिए. सो हाउ प्रैक्टिकल इट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस one may have with this online test? I would like to know from the panelist. जी वंदना मैम. डेफिनेटली देखिए, आज भी अगर आप स्टेट करें तो ऐसे की टीचर्स बहुत ज्यादा दे आर वर्किंग अ लॉट, दे आर डूइंग अ लॉट. बात ये है कि इतने सारे पैरामीटर्स जो हमने किए हैं, उसको क्या उन्हें कोई I think, so that they have to present their work in a presentable manner. So somebody who's doing some present in that manner, मतलब एक opportunity को deny से वो I think Vandana ma'am, there is some disturbance in the network problem. हाँ, एक बार आप उसको फिक्स करके देखिए. तब तक इस पे चंदन, डॉक्टर नील, आप कुछ ऐड करना चाहें कि कितना एफिशिएंट ये होगा कि हम ऑनलाइन टेस्ट दे करके कैरियर प्रोग्रेशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विच करते रहेंगे. अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये आसान काम नहीं है, और अगर ये ब्यूरोक्रेटिक नजरिए से भी हम देखें, अगर क्योंकि एनसीटी में बैठे हुए लोग जरूरी नहीं कि वहां पे टीचर्स ही होंगे या टीचर कम्युनिटी के लोग होंगे जो बेहद ईमानदारी के साथ आपका मूल्यांकन कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो सबमिशन की भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे रियली एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या ये मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से हो पाएगा, या कहीं ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, ठीक है आपके 3 साल पूरे हो गए, कोई बात नहीं, फाइल मूव हुई और उस पर आप आगे बढ़ गए. तो इनको अगर इस पैटर्न पे चलना है तो कोई बहुत फुल प्रूफ तरीका लेकर आना होगा, और उसकी पैनल क्रिएट हो जहाँ पे टीचिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हों जो रियल में ये इवेल्युएट कर पाए कि हाँ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स क्या टीचर के अंदर कुछ बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं. या एंड आई थिंक हमारे कई सारे साथी हैं जो डिफरेंट ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जैसे वेलो के प्रोग्राम से. आई रिमेम्बर मैंने भी वंदना मैम, हम लोगों ने टॉफल टेस्ट दिया था. तो ऑनलाइन ऐसे टेस्ट हैं जो रियली एसेस करके रख देता है कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उसका है. तो अगेन लाइक जो एक्सपर्ट एजेंसीज है इस फील्ड में, they can be like, they can help, it can be developed, but I also feel that this cannot be perhaps the only criteria, and this is not, in fact document bhi ye keh raha hai ki this will be one and the other criteria may also develop. So again seems a little unrealistic at this point of time, but the way we are moving towards online
and the virtual world, perhaps this is going to be the reality. And I think corporate world में ये खूब होता है. मुरारी सर, यहाँ पे दो चीजें जो है वो बेसिकली ये मैं दिखाना चाहूंगा कि इसकी वजह से ये आए, ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे हाथ में, ये एक तरीके से रूट है इस डॉक्यूमेंट के लिए. राइट. और इस वाले डॉक्यूमेंट में जो है वो कहा गया है कि हमारे ब्लॉक लेवल पे कुछ एक लोग होंगे जो चीजों को इंश्योर करेंगे कि वो आप आइए, अपना लेसन प्लान डिलीवर कीजिए और उसके बाद देखा जाएगा आर यू फिट फॉर द जॉब और नॉट. लेकिन कहीं भी उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन और हाउ दैट पर्सन इज इन अ पॉइंट कि वो ये जज कर सके कि ये सामने वाले व्यक्ति ने लेसन जो डिलीवर किया वो सही किया या नहीं किया, उसकी बात नहीं की गई है. सो दैट्स पुट्स इन आई थिंक फिर से ऑडियो की प्रॉब्लम है चंदन जी आपके यहाँ से. मैं भी देख रहा हूँ कि मीनाक्षी जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है, एंड आई फाउंड इट मिसिंग इन द डॉक्यूमेंट कि टीचर असेसमेंट में स्टूडेंट का रोल तो होना ही चाहिए. इफ नॉट एंटायरली बट डेफिनेटली सिग्निफिकेंट पार्ट शुड बी गिवन कि स्टूडेंट किस तरीके से टीचर्स को असेस करते हैं. बट आई फाउंड इट मिसिंग इन द डॉक्यूमेंट मिसिंग था. और आई थिंक उसे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो असेसमेंट फॉर लर्निंग वाली बात है, लर्निंग वाली बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी एज अ स्टेक होल्डर एक इम्पोर्टेंट दिया गया. तो उसका कोई डिटेल्ड वो नहीं है, but then still it points towards that in an indirect mode. But हाँ, it should have been more explicit, definitely. Like ये बहुत important है कि otherwise हमेशा evaluator की position में teacher ही रहता है. So this role also needs to have a big shift. Right. And the one question which is like again very close to me, Vivek, I'll just come back to you. I was referring about you and your proposal that how the profession of teaching should be lucrative so that the best mind can be attracted. तो मैं अभी आऊंगा आपके पास कि एक सवाल जिसपे नील ने भी थोड़ा सा रेफर किया. जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो लगता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक छटपटाहट है कि हम कैसे ब्यूरोक्रेसी को बाईपास कर दें. सारे असेसमेंट में या टीचर के करियर प्रोग्रेशन में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में इट अपीयर्स टू बी वेरी टेम्पटिंग, बहुत शानदार लगता है. But the way education is controlled by the bureaucracy across the states, again, I mean, how would it be like a better situation, or it's again unrealistic क्योंकि सारा फाइल तो वहीं से पास होना है. So again, it is going to depend on a lot of political will. Yeah. People that are leading the system. अगर वो राइट पॉलिटिकल विल, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी एग्जिस्ट करती है, टीचर्स की वॉइसेस और उनके ओपिनियंस को अगर सुना जाता है और आपके रोजमर्रा के उसमें भी जो भी सजेशंस आप देते हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो आई थिंक दैट इज व्हाट ऑटोनॉमी टॉक्स अबाउट, दैट इज व्हाट योर वॉइसेस बीइंग हर्ड टॉक्स अबाउट. एंड विद द राइट पॉलिटिकल विल, आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा मैंडेटरी क्या है, अबाउट द इंटेंट. As straight the intent is, as will be the outcome. तो अगर intent straight है तो outcome भी बिल्कुल वैसा ही होगा. तो interpretations, misinterpretations हर जगह पर होंगी. Right. वाले का intent क्या है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा. Absolutely. And coming to the last question, which I feel even this document doesn't want to address much, कि मुझे ऐसा लगता रहता है, एनईपी पढ़ते हुए भी लगा और इसको पढ़ते हुए भी लगा, कि टीचर को रिसर्चर के रूप में ये नहीं इमेजिन करते. पता नहीं क्यों, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर, कि टीचर्स इस तरीके के पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट करें, लिखें, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज में जाएं. हालांकि लीड टीचर के लिए कहीं कहीं ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक्शन रिसर्च करें, बट व्हाई ओनली एक्शन रिसर्च? बहुत सारे रिसर्च हैं जो टीचर्स कर सकते हैं, उसमें एंगेज हो सकते हैं. तो द क्वेश्चन इज कि बिना रिसर्चर हुए कैन बी रियली इमेजिन अ रियल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर? चंदन जी कुछ कह रहे हैं. तो आई रियली डोंट थिंक सो कि अगर ठीक है, मैं एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता हूँ कि सब उसको ही लिखें उस तरीके से,
बट अ टीचर मस्ट मेंटेन अ काइंड ऑफ डायरी और जर्नल जहां पर वो रीवैल्यूएट कर सके अपने आज की क्लास को अपने आने वाली क्लास के साथ। तो अगर हम उस डॉक्यूमेंट को देखें, अगर मैं बात करूं अपने बीएड वाले दिनों में, तो हमारे टीचर अक्सर कहा करते थे हमसे कि वो जो टीचिंग डायरी है वो आपकी सबमिट नहीं की जाएगी, वो आपके पास रहेगी। सो देखना कि कैसे जो पहले दिन लेसन प्लान बनाया था उसके बाद जब रिविजिट कर रहे उसी लेसन को, सो हाउ यू एज अ पर्सन एज अ टीचर इवॉल्व्स, तो वो देखने के लिए जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वो डॉक्यूमेंट को अपने आप में मेंटेन करना कहीं ना कहीं आपको एक रिसर्चर की पोजीशन में लेकर के आएगा। तो इन अ वन वे और अनदर, once you are a teacher you should be a researcher as well। चंदन जी, ये जो आपने कहा ये दिलचस्प है कि यहाँ पे मैं जब आपने ये सवाल उठाया तो इसके दो हिस्से को देखता हूँ कि टीचर एज ए रिसर्चर डेवलप्स हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग, वो अपने प्रैक्टिस को और कैसे बेहतर बना सकता है। लेकिन मैं जो कंसर्न हूँ टीचर एज ए रिसर्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, जब वो रिसर्च करता है तो वो अपने काम के बारे में बहुत पावरफुली कम्युनिकेट कर पाता है टू द to the group of people who understand that language, again the policy makers। तो वो जो हम डायरी में लिख के रखते हैं, this is none of their concern, लेकिन अगर आपने रिसर्च लिख करके पब्लिश करवाया तो that is of their concern, फिर उसको वो पढ़ते हैं। जी वंदना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप शांति निकेतन में हमें मुझे पिछले साल जाने का मौका मिला था, तो अगर आप वहां देखेंगे तो पाथा भवन जो स्कूल है रविंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने अपने टीचर्स के लिए इनिशिएटिव लिया कि वो शांति निकेतन का जो आपका टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है विश्व भारती का, उसको एफिलिएट किया पाथा भवन स्कूल के साथ। और वहां पर ये अपॉर्चुनिटी दी गई है टीचर्स को कि वो अपने स्कूल टाइम के इतर जा करके और यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट दे आर एनकरेज्ड बाय द हेड ऑफ द स्कूल टू टेक अप रिसर्च वर्क विद विश्व भारती यूनिवर्सिटी विद द टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये कोलैबोरेशन है एक स्कूल और एक यूनिवर्सिटी के बीच में, जिसमें टीचर्स को एनकरेज किया जाता है ये काम करने के लिए कि आप फॉर्मली रिसर्च से जुड़िए। ये उसका एक जीवन उदाहरण है। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है कि हम एमए हो गए तो हमें आपकी पीजीटी बन जाने के लिए केवल मास्टर्स की क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत है, हमें एक रिसर्चर या एक पीएचडी हमें नहीं चाहिए। सो व्हाई शुड बी ग्रांटिंग यू अ स्टडी लीव ऑफ 5 years because you suffice in the role after becoming a postgraduate itself। So a teacher has to go extraordinarily out of the way to pursue it। So I think the policy should address this issue। And मुझे लगता है कि बहुत सही मौके पर जब हम लोग टीचर रिसर्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ डॉक्टर अजय चौबे सर आ गए हैं, जो मेरी जितनी जानकारी है, आप लोगों ने देखा हो कि मैं बीच में थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्टेड था, मैं यही देख रहा था कि ये कहाँ पहुंचे हैं, ही वाज ट्रैवलिंग। तो फाइनली आ गए हैं और मेरी जो जानकारी है, he is the only person in India, at least in India as I know, who actually bridges the two worlds, the world of the academia and the world of the school education। So that's the only bridge, and we are extremely privileged to have him here। So friends, आप में से जो लोग नए हैं, जो कम जानते हैं, वो इनके कामों के बारे में पढ़िए, जानिए, लोगों से बात कीजिए, इनको कभी सुनिए। तो दैट्स आवर प्रिविलेज। तो सर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसी सवाल पे ला रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं इस मंच पे कि जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट टीचर को रिसर्चर के रूप में बहुत ज्यादा मतलब इमेजिन नहीं कर रहा है। क्या इसके बिना कोई टीचर वाकई एक अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है? हम चाहेंगे आपकी टिप्पणी से। भाई थैंक यू भाई, और सॉरी मैं मिस कर गया इतना बढ़िया डिस्कशन। कोई बात नहीं, हम आपको अगले एपिसोड में ला रहे हैं, अभी से अनाउंस कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट पढ़ेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए टीचर की प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल स्टेटस और हम आइडेंटिटी की बात करें तो इसके दो एक्सेस हैं। एक तो स्ट्रक्चरल एक्सेस है जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं और जिसको हम पॉलिसी में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और एक है एजेंटिक। तो कई बार मान लीजिए कि दो चीजें होती है कि आपके पास संसाधन है और आप हमें दो तो मैं अपना काम पूरा करूं, और कई बार होता है कि नहीं, मैं खुद प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन आप ऐसी स्थिति हालात पैदा करते हैं कि ना मेरे को आप अपना संसाधन देंगे और ना जो मुझे खुद अपना अर्जित करने देंगे, एक्वायर करने देंगे।
तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इसी तरफ इंगित करती है कि जो एक एजेंटिक पावर था टीचर्स के बीच के पास, कि और केवल इसी टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, बाकी प्रोफेशन को देखिए कि जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कौन तय करता है, जो प्रोफेशनल ग्रुप होता है, प्रोफेशनल एथिक्स हर ग्रुप की, चाहे डॉक्टर की है ना, चाहे एडवोकेट्स की है ना। ब्यूरोक्रेसी कहीं किसी की प्रोफेशनल एथिक्स नहीं करती है ना, वो एक कानून के द्वारा आपको एक मतलब एक करती है कि भाई आप ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं, ऐसी नहीं करेंगे, मिनिमम जो ह्यूमन राइट्स का मामला होता है। अदरवाइज जो एक मतलब अपना जो एक कलेक्टिव कंसियंस होता है उसके आधार पर लोग तय करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं से टीचर्स को ऑटोनॉमी नहीं देती है। यदि ये बात कहती मतलब हर जिले में, हर स्टेट में उसके कंटेक्स्ट के अनुसार, उसके स्ट्रेंथ के अनुसार, लर्निंग नीड्स के अनुसार एक प्रोफेशनल ग्रुप बनेगा, और प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो टीचर यूनियन भी उसमें हिस्सा लेंगे, और वो लोग अपना एक प्रोफेशनल एथिक्स बनाएंगे, और जो कि सरकार के पास जो है प्रस्तुत होगा, और जिसको शायद यदि ज्यादा जरूरी होगा या सबसे बेहतर तो यही होगा कि विधानसभा में हो, उस पर डिस्कशन हो, है ना। उसमें दोनों बातें, टीचर के अधिकार की बात हो, टीचर की कर्तव्य की बात, है ना। तो मामला है कि ये पॉलिसी वैसा तो करती भी नहीं है, और दूसरा कि जो एजेंटिक पावर है उसी को करती है, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जस्ट देखिए आजकल एक डेमोक्रेसी में जो मतलब जो कंटेम्पोररी डेमोक्रेसी है उसमें आप देखेंगे कि लगभग सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, बल्कि जो जितना एक्सक्लूडेड ग्रुप है, मार्जिनलाइज ग्रुप है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से और उसको पूरा अच्छे मतलब वो कालीन वगैरह डाल के आपको नहीं उसको बिछाया जाता है, उसको कोई उसका पांव पखारता भी है, उसको मतलब अगरबत्ती धूप सब दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन केवल पार्टिसिपेशन, क्या उसका पार्टिसिपेशन में वो डिसीजन को प्रभावित कर पाता है। तो उसी तरह जो मैं टीचर्स को मानता हूँ कि टीचर्स का जो वजूद है, जो आइडेंटिटी है, उसका एसेंशियल चीज है वो एपिस्टेमिक राइट। टीचर के पास ज्ञान मीमांसी अधिकार है, पॉलिसी उसको ज्ञान आप हमको मतलब कुछ संसाधन मत दीजिए, संसाधन की कमी कर दीजिए, लेकिन आपका अधिकार, टीचर का अधिकार इसलिए क्षरित हुआ है कि टीचर को ज्ञान निर्माण की एक मतलब क्या कहते हैं, जो एक आधिकारिक संस्था, एक एजेंसी के रूप में माना जाता था, वो अब नहीं, उससे डिप्राइव कर दिया गया है ना। एब्सोल्युटली एक पोस्ट ग्रेजुएट और बेहतर पीएचडी किए हुआ स्टूडेंट व्यक्ति विषय की अच्छा मादा रखता है। मैं मैथमेटिक्स में बताऊं, मैथमेटिक्स की किताबें एनसीईआरटी में उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने, जो मैथमेटिक्स जिनका सेकेंडरी विषय था, अनिता रामपाल एंड बहुत सारे लोग थे उसमें, हर्षित जी थे, ये लोग फिजिक्स के लोग हैं, फिजिक्स और मतलब केमिस्ट्री के लोग हैं, इन्होंने मैथमेटिक्स की किताबें लिखी। उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता था, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब वो आप एक बार समझिए कि एक हर सब्जेक्ट का एक अपना एसेंस होता है, वो छूट जाने का खतरा है ना। और यही कारण है कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल मैथमेटाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया है और वर्टिकल मैथमेटाइजेशन से छूट गया है। राइट। तो ये एग्जांपल है। उसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबों में टीचर्स के नाम लिखे होते हैं कि भाई फलाने के केंद्रीय विद्यालय के टीचर है, उस स्कूल के। तो क्या उनका स्टेटस है, क्या उनका बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि दे आर जस्ट फॉर द पार्टिसिपेशन, दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू इन्फ्लुएंस द, फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन दे हैव नो स्पेसिफिक राइट एंड एनी मतलब डिसिसिव क्या राइट। हमें मुझे लगता है कि टीचर की प्रोफेशनलिज्म की लड़ाई का जो मतलब मेन मुद्दा है जिसपे हमें काम करना चाहिए कि हमारा एपिस्टेमिक अधिकार वापस दो। तो यही मैं आपसे अपने सभी साथियों के बिहाफ में आपसे अपील करने वाला हूँ, रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि वो जो लॉस्ट स्पेस है जो कभी मिला ही नहीं बेसिकली, कि चाहे वो करिकुलम डिजाइन को लेकर के हो, चाहे वो पॉलिसी फ्रेमिंग को लेकर के हो, अगर वो स्कूल से संबंधित है तो इट्स द टीचर्स who has the first right to comment upon it, to write about it, to speak about it, to influence it. तो उस तरीके की प्रोफेशनल आइडेंटिटी टीचर कैसे डेवलप करे, उस तरीके का लैंग्वेज टीचर कैसे डेवलप करे। आज तो बहुत कम देर के लिए हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला, बट आई विश की एक ऐसा मैकेनिज्म हम लोग डेवलप कर पाएंगे जहां रेगुलरली कम्युनिकेट करके
हम उस स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम उन तमाम जगहों पे जहाँ पे स्कूल के बारे में हर चीज हो रहा है लेकिन स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या अगर हैं तो जो आप कह रहे थे कि फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, दैट शुड नॉट हैपन। एंड उसके लिए हम सभी लोगों की आपसे बहुत उम्मीद है, और अब आप SCRT में है जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत राइट प्लेस है इन चीजों को वहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए। तो सर हमारे साथ जो भी फ्रेंड्स हैं आज वो काफी देर से हैं, आप ही का बेसिकली इंतजार कर रहे थे कि आप आएं और आपको सुन सकें। हम एक लास्ट कमेंट आपसे इस संबंध में लेना चाहेंगे कि इस वाले डॉक्यूमेंट में कैरियर प्रोग्रेशन के लिए 4 बातें बताई गई है कि टीचर जो शुरू में आएगा वो बिगिनर होगा, फिर 3 साल के बाद वो एक टेस्ट दे करके प्रोफिशिएंट टीचर बन जाएगा, फिर वो 3 साल के बाद एक्सपर्ट, और उसके अगले 3 साल के बाद लीड टीचर बन सकता है। हमने सभी लोगों ने इस कैटेगराइजेशन को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समझा है। इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं सर टीचर का कैरियर प्रोग्रेशन जो, ये हम आपसे देखिए टीचर, देखिए आप पे मैंने देखा कि जो कैटेगरी बनाई गई है वो पूरी तरह से सीधे सीधे साला सीधी की नकल करने की कोशिश की गई है। साला सीधी में आप देखेंगे कि एक जो 3 लेवल बनाए गए थे उसी तरह से इन्होंने 4 लेवल बनाया, ठीक है। इन्होंने लगा कि भाई हम एक लेवल बढ़ाएंगे तो ज्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल मतलब वैसे लोगों ने, उनको समझ ही नहीं है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, लोगों की करियर ग्रोथ क्या होती है। अच्छा, जो डिवीजन भी है वो डिस्क्रीट है, आप देखें, और एक्सक्लूजनरी भी है। एक आदमी बिगिनर से ही 3rd लेवल में हो सकता है, बिगिनर्स जो है वो 3rd लेवल की कॉम्पिटेंसी उसमें एक्वायर करके वो PGT और TGT बन सकता है ना। आप एक्सक्लूड कर रहे हो उसे, या एक तरह से कहो कि आप उसको एलिनेट करोगे, आप उसको ह्यूमिलिएट करोगे, है ना। जी जी। तो सिंपल से जो कैरियर, जो मतलब एक प्रोग्रेशन का और कैरियर का जो एनहांसमेंट का जो एक मॉडल होना चाहिए, वो मॉडल होना चाहिए कि हर व्यक्ति को जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे उसकी नीड्स और एस्पिरेशन है, उसको मेजर करने का एक की अपॉर्चुनिटी और स्पेस हो, है ना। सिंपल और उसको ऐसे बांधा नहीं जाए कि पहले 3 साल में ये करो। ये बांधा भी जाए तो एक सेंस हो, एक ऐसा मतलब कैटेगरी बनाए जिसमें जो इंक्लूसिव हो। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग जैसे कह रहे थे, बार बार मैं देख रहा था कि आप लोग कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को सरपास किया जा रहा है। आपको पता है ये ब्यूरोक्रेसी को सरपास नहीं किया जा रहा है, नई तरह की ब्यूरोक्रेटिक रचना की जा रही है। अच्छा, एक नई तरह की ब्यूरोक्रेसी की रचना ये है जो था कि एक ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं से रूल रेगुलेशन से बंधी हुई होती थी, जिसमें मतलब एक सर्टेनिटी होती थी, भले रेटिज्म होता था, और तभी आप देखते थे कि कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस आ जाया करता था। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है जिसमें नॉन ब्यूरोक्रेटिक जो घुमंतु एलिमेंट मैं कहता हूँ उनको, जैसे NGO भाई साहब करके तैयार करेंगे चीजें, और वो मामला है ना। और मतलब क्या कहते हैं, बात समझिए ना। ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं सर। मतलब आप पहले वाली हालात में हम लोग इस सिचुएशन में थे कि वी कुड लोकेट कि हियर द प्रॉब्लम लाइज, लेकिन नए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में वी वुड नॉट बी एबल टू इवन लोकेट वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सूडो ब्यूरोक्रेटिक जो है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखिए एक मतलब किस तरह की मतलब हेजोमनी क्रिएट की गई है, या ये कहिए किस तरह से रिफाइंड किया गया है ना, अंडर द वेल ऑफ मतलब ये जो टर्म्स हैं जो पॉपुलर मतलब आप कहिए, यहाँ तो जार्गन ही दिख रहे हैं वो, जैसे प्रोफेशनलिज्म, कैरियर प्लानिंग, क्योंकि ये डिमांड था, ये बहुत दिनों से डिमांड था। मैंने रिसर्चेज भी या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज जो टीचर यूनियंस थे, सब लोगों की डिमांड थी कि ये चीजें होनी चाहिए। उन्होंने नाम तो लिया, लेकिन इनको सेंस ही नहीं है, इनको सेंस ही नहीं है। टीचर्स को आप 2 चीजें नहीं दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एपिस्टेमिक राइट और पॉलिटिकल राइट, है ना। आप एक बात समझिए, आपके दिल्ली में आप देखिए कि लोग PGT का काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं, PGT की तनख्वाह ले रहे हैं। किसी हिम्मत नहीं है कि एक दिन की वो स्ट्राइक कर ले, है ना, है यहाँ। तो आपके पास अपने ही अधिकार को असर्ट करने का, उसको बनवाने का, उसको दबाव डालने का अधिकार नहीं है ना। है कुछ स्टेट में, जैसे आप बिहार में जाके देखें तो बिहार में आपको है, वहाँ की MP में है, UP में है, और बिहार में तो स्थिति ये है कि वहाँ टीचर प्रतिनिधि आपको MLC भी बनता है ना। इस तरह की चीजें यदि हम इसमें शामिल न करें तो आप कैसे करेंगे, खास कर। जी। तो आई थिंक सर
जो हमारे साथ फ्रेंड्स हैं, दे विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। हम लोग 1.5 घंटे से करीब बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो वी क्विकली रिकैप्चुलेट, और जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है उसको अभी बंद कर देते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हमने जो इस डॉक्यूमेंट पे बात की, द पर्पस वाज अगेन टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग सो दैट वी कैन रीच आउट टू एनसीपीई, वी कैन राइट। एंड कहीं कहीं ऐसा लगा होगा कि हमने चीजें क्रिटिसाइज की है, बट वी आल्सो हैव टू थिंक द अल्टरनेट, कि अल्टरनेट क्या हो सकता है। एंड यू ऑल आर वेलकम टू थिंक टुगेदर टू राइट ए डॉक्यूमेंट। और जैसे पांडे सर ने कहा था कि वी विल आल्सो ट्राई टू रीच आउट टू एनसीटी, कि वो हमारे साथ एक कंसल्टेशन भी रख सकें अगर इस बारे में। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सच कन्वर्सेशन, मेनी सच कन्वर्सेशन विल बी रिक्वायर्ड। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पैनलिस्ट, Dr. Pandey, who was with us a little while ago, Bandna ma'am, Dr. Neil Chandan sir, and Dr. Ajay Chaube, for this wonderful conversation, which will continue in different forms. So thank you everyone for joining. We will just discontinue the live streaming. You all are still here, so stay with us. Thank you, bhai. Thank you. Thank you. And Narendra sir,